Hello dear TYBSC, welcome to the another video lecture of the genetics and molecular biology of for the chapter 2, that is the transformation. And yes, we are at the last point of this chapter. So we have studied the major points of the chapter about the transformation procedure, how it takes place in the gram positive bacteria, how it is going to take place in the gram negative bacteria, as well as we have learned the factors that are going to affect the transformation and also the significance behind the transformation. Now in this lecture we are going to start the last point, that is the co-transformation, how the co-transformation is going to help in the gene mapping. Okay, we are going to see what is co-transformation and then how it is being used for the gene mapping. Okay, so let's start. So generally when we see the transformation or we talk about the transformation, we know that transformation means what? It is the uptake of the foreign DNA, okay, into the cell. Okay, and the DNA is taken up from the extracellular environment. That too, the cell must be competent to take up the foreign DNA. Okay, now this transformation procedure, ये जो पूरी प्रोसीजर थी जिसमें हम क्या करते हैं कि बाहर से डीएनए अंदर लेते हैं एंड अंदर लेके, ठीक है, अब डीएनए भी कौन सा बाहर, मतलब इन द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, नॉट इट डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ अ सेल कॉन्टैक्ट. ठीक है, सो फॉर दैट थिंग बाहर का डीएनए अंदर लिया जाता है एंड दैट टू बाय द कंपेटेंट सेल एंड दिस सेल, ओके, दैट रेसिपिएंट सेल जो है वी कैन जस्ट दिस रेसिपिएंट सेल गेट्स अडाप्टेड टू दैट डीएनए और वो आगे अपनी प्रोजेनी कंटिन्यू करती है. ठीक है, एक ओवरऑल प्रोसीजर इन द टर्म ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है it is been used to map the genes in situation where mapping by conjugation or the transduction is not possible. ठीक है, अब होता क्या है जनरली, मैंने आपको बताया था ट्रांसफॉर्मेशन सब बैक्टीरिया अंडों नहीं करते, तो इसलिए generally the gene mapping is done by the conjugation or the transduction. But when these two procedures are not helpful, then yes, we have the another option, that is the transformation. तो हम transformation की मदद से gene mapping कर सकते हैं. Now the first question that may arise in your mind is what is the gene mapping? Okay, gene mapping होता क्या है? बहुतों को पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा. तो gene mapping होता क्या है? तो when we say about the map, ठीक है, मैप जब हम बात करते हैं मैपिंग की, तो वी इमेजिन द थिंग दैट इज़ द प्लेस लोकेशन. ठीक है, इवन आप गूगल मैप भी यूज़ करते हो, वी यूज़ द मैप फॉर द पर्पज़ ऑफ फाइंडिंग अ प्लेस और अ लोकेशन. सो सेम जीन मैपिंग, वही चीज़ हम जब जीन में या फिर किसी क्रोमोजोम में करते, दैट इज़ नथिंग बट द जीन मैपिंग. नाउ व्हाट द थिंग इज़ दैट कि when we want to know the exact location about the gene, we want to do the we want to know the distances between the genes, we want to know how the genes are being placed in the chromosome. Yes, the procedure is known as the gene mapping. ठीक है, gene mapping होता क्या है? when we want to know the exact location of the gene into the chromosome, that is nothing but the gene mapping. Okay, so now this gene mapping is a very, we can say, popular term these days. Okay, ह्यूमन जीनोम मैपिंग भी आपने सुना होगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ठीक है, तो ये जीन मैपिंग एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है. अगर आपको बैक्टीरिया का जीन मैपिंग करना है या उसके जीन्स के बारे में जानना है, देन यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस टाइप ऑफ प्रोसीजर, दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन. अब उसमें क्या किया जाता है, डोनर का डीएनए इज़ बीन एक्सट्रैक्टेड. ठीक है, डोनर का डीएनए, पहली चीज़ तो है कि हमें एक्स्ट्रा सेलुलरली डीएनए प्रोवाइड करना है, तो हमें पहली चीज़ ये करनी पड़ेगी कि हमें जो डीएनए ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है, हमें जिसका ट्रांसफॉर्मेशन करें, जिसके बारे में हमें जानना है, वो डीएनए हम प्योरीफाई करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे ई कोलाई के बारे में जानना है कि उसमें कौन से जीन्स कहाँ पे प्लेस्ड है या फिर कौन से जीन जो है उनका लोकेशन क्या है, क्या डिस्टेंस है उन जीन्स में. तो फॉर दैट पर्पज आई कैन डू द ट्रांसफॉर्मेशन. तो उसमें क्या किया जा सकता है, डोनर सेल है फॉर एग्जांपल ई कोलाई सेल, तो उसका मैंने क्या किया, डीएनए एक्सट्रैक्ट किया. ठीक है, इसमें से डीएनए मैंने एक्सट्रैक्ट किया, उसको प्योरीफाई किया. ठीक है, एंड ये डीएनए को मैंने डाला एक दूसरे बैक्टीरिया में, दैट इज़ द रेसिपिएंट सेल. ठीक है, तो ये ओवरऑल प्रोसीजर होती है. उसके बाद
डोनर और रेसिपिएंट में ये चीज़ है कि उनमें एक डिटेक्टेबल डिफरेंसेस होने चाहिए इन द फिनोटाइप। फॉर एग्जांपल, अब फिनोटाइप मतलब क्या, एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है, वो हो सकता है, या फिर कौन से वो अमाइनो एसिड सिंथेसाइज करते हैं, कौन से नहीं करते, इसका डिफरेंस हो सकता है। ये टाइप के डिफरेंस होने चाहिए उन दोनों में। रेसिपिएंट एंड द डोनर शुड बी डिफरेंट इन द केस ऑफ द फिनोटाइप एंड ऑल्सो द जीनोटाइप, ठीक है। तो इस ऐसे आपने दो बैक्टीरिया सिलेक्ट करे, ठीक है। अब मुझे स्टडी करना है ई कोलाई का, तो मैंने ई कोलाई का डीएनए लिया, प्यूरिफाई किया, उसको डाला स्ट्रेप्टोकोकाई में, ठीक है। उसके बाद उसका स्टडी करना है मुझे कि उस ई कोलाई में जो है जीन्स कौन से थे, सॉरी जीन्स जो है वो कितने डिस्टेंस में लोकेटेड है, या फिर कितने उसमें डिस्टेंस है, या फिर लोकेशन क्या है उनका, ठीक है। ये मुझे जानना है, इसलिए मैंने ई कोलाई का डीएनए लिया, उसको डाला इन द स्ट्रेप्टोकोका। अब स्ट्रेप्टोकोका ई कोलाई और लाइक ज़मीन आसमान, उनमें फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक सिमिलैरिटी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नाउ ये जो डीएनए है, ठीक है, इफ द डीएनए फ्रैगमेंट अंडरगोज द होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन विद द रेसिपिएंट क्रोमोसोम, अ न्यू फिनोटाइप इज प्रोड्यूस एंड दैट वी कैन डिटेक्ट बाय यूजिंग द फिनोटाइपिक चेंजेस। मतलब क्या कि जो डीएनए, अब मैंने ई कोलाई का डीएनए लिया था, अब मैंने पहली थिंग आपको बताई थी कि ये दोनों बिल्कुल सिमिलर नहीं है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, वो बैक्टीरिया जब रेप्लिकेट होता है तो वो दो टाइप के बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। एक मिक्सचर वाला होता है जिसमें दोनों के जीन्स होंगे, और एक होता है जो ओरिजिनल जैसे होता है। तो ये मिक्सचर वाला जो होता है ना, वो ना ई कोलाई जैसे होगा ना स्ट्रेप्टोकोकाई जैसे होगा, उसमें मिक्सचर होगा दोनों का, ठीक है। तो यही मिक्सचर आपको स्टडी करना है, इसी का ही आपको फिनोटाइप स्टडी करके देखना है कि ई कोलाई में कौन से जीन्स थे और वो यहाँ पे कितने ट्रांसफॉर्म हुए हैं, और इससे आप लोग जीन मैपिंग कर सकते हो। तो इस होल प्रोसीजर को जो है कहा जाता है को ट्रांसफॉर्मेशन। अब वो होता क्या है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहली चीज़ तो ये कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन क्यों यूज़ करना है फॉर द जीन मैपिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो कितने क्लोज है जीन्स, ये हम पता कर सकते हैं। इसके अलावा जीन्स की ऑर्डर क्या है, मतलब पहला जीन कौन सा है, दूसरा जीन कौन सा है, ये भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एग्जैक्ट डिस्टेंस तक हम जान सकते हैं कि उन दोनों में डिस्टेंस क्या है, ठीक है। सो दिस आर सम थिंग्स दैट वी कैन डिटरमाइन यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। इन शॉर्ट जीन मैपिंग हम कर सकते हैं। अब को ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम जान सकते हैं कि को ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। सो को ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या, अब इसके नाम में क्या, को एंड द ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो दो जीन्स, ओके, अगर हमें दो जीन्स को ट्रांसफॉर्म करना है, दोनों, सपोज एक, सॉरी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सपोज एक डीएनए है, ठीक है, उसमें ये दो जीन्स हैं, ठीक है। अब मुझे अगर इन दोनों जीन्स को, फॉर एग्जांपल ये ई कोलाई की जीन है, अगर मुझे ये दोनों जीन्स को स्ट्रेप्टोकोकाई में ट्रांसफॉर्म करना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों को जो है थोड़े से इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए, ताकि ये दोनों के दोनों जब मैं फ्रैगमेंटेशन करूँ तो ये दोनों ट्रांसफॉर्म हो जाए इन द रेसिपिएंट, मतलब फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म होने के लिए दोनों को क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होना पड़ता है, दैट इज़ द को ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब दो जीन्स का एक साथ ट्रांसफॉर्मेशन, को, ठीक है। को मतलब क्या, जहाँ पे दो जने इन्वॉल्व है, दैट इज़ नोन एज द को। और को ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या, दोनों जीन्स का एक साथ ट्रांसफॉर्मेशन होना, ठीक है। अब वो एक साथ कब ट्रांसफॉर्म होंगे, जब वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगे, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग विच वी कॉल्ड एज द को ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ इस को ट्रांसफॉर्मेशन में आई विल एक्सप्लेन यू कि एक एग्जांपल देती हूँ कि ये कैसे स्टडी किया था। तो एक स्टडी हुआ था जिसमें क्या किया था, एक बैसिलस सबटिलिस बैक्टीरिया, ठीक है। बैसिलस सबटिलिस बैक्टीरिया में दो म्यूटेशंस किए गए थे। अब जो ओरिजिनल बैक्टीरिया था, ठीक है, वो बैक्टीरिया था ट्रिप प्लस एंड हिस्ट प्लस, ठीक है, सॉरी मतलब इसमें सॉरी ट्रिप्सिन एंड हिस्टिडीन, सॉरी, ये दोनों टाइप के अमाइनो एसिड सिंथेसाइज करने की एबिलिटी थी, ठीक है, ये ओरिजिनल में ट्रिप प्लस एंड दी हिस प्लस, ठीक है। लेकिन साइंटिस्ट ने क्या किया, ये बैसिलस सबटिलिस में म्यूटेशन करके, ठीक है, दो म्यूटेंट्स बनाए, दैट इज़ दी ट्रिप माइनस एंड दी हिस माइनस, ठीक है। मतलब इसमें जो एबिलिटी थी बैसिलस सबटिलिस में, जो आई टोल्ड यू क्या कि उसमें एबिलिटी थी हिस्टिडीन और
ट्रिप्सिन प्रोड्यूस करने की वो एबिलिटी जो है, सॉरी नॉट ट्रिप्सिन, ट्रिप्टोफैन, ये एबिलिटी रिमूव कर दी, ठीक है। ये वाइल्ड में थी कि वाइल्ड वाला जो है, मतलब जो ओरिजिनल बैसिलस है वो क्या कर सकता था, ट्रिप्टोफैन एंड हिस्टडीन दोनों प्रोड्यूस कर सकता था, लेकिन साइंटिस्ट ने क्या किया, उसकी ये एबिलिटी में म्यूटेशन कर दिया एंड उसमें से वो एबिलिटी रिमूव कर ली, ठीक है। अब होगा क्या जब मैंने ये वाइल्ड टाइप डीएनए लिया, ठीक है, वाइल्ड टाइप में क्या एबिलिटी मैंने आपको बताई, सॉरी, वाइल्ड टाइप में जो है ट्री प्लस एंड हिस प्लस, ठीक है। अब ये जो एबिलिटी है, मैंने इसका डीएनए लिया, इसमें दोनों जीन्स होंगे, ठीक है, ट्रिप प्लस और एच प्लस। ये मैंने क्या किया, मतलब साइंटिस्ट ने क्या किया, ये डाला इनटू द जीनोम, जीन ऑफ द सेल जो म्यूटेंट थे, ठीक है, म्यूटेंट बैसिलस सबटिलिस, जिसमें क्या था, ट्रिप माइनस एंड हिस माइनस, ठीक है। ऐसे सेल में डालने के बाद, ठीक है, उसको ट्रांसफॉर्म किया, मतलब इसमें कुछ होल्स जनरेट किए, उसके बाद इसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद एक हेटेरोलॉगस स्ट्रैंड तैयार हुआ, ठीक है। तो ऐसा पाया गया कि ट्रांसफॉर्म करने के बाद कि बैक्टीरिया ने दोनों अमाइनो एसिड प्रोड्यूस किए, मतलब म्यूटेंट था वो बैक्टीरिया, उसमें नहीं थी एबिलिटी, फिर भी उसने प्रोड्यूस किए। और वो भी कैसे, जब रिसर्च किया गया, इसकी मैपिंग की गई, तो पता चला कि 80% ऑलमोस्ट थे ऐसे जिसमें हिस प्लस जीन था, उसमें ट्रिप प्लस भी था, ठीक है, मतलब जिसने हिस्टिडीन प्रोड्यूस किया उन्होंने ट्रिप्टोफैन भी प्रोड्यूस किया। 80% जो ट्रिप्टोफैन प्रोड्यूस कर रहे थे उन्होंने हिस्टिडीन भी प्रोड्यूस कर लिया। इसका मतलब क्या था कि ये दोनों जीन्स जो है ये एक साथ प्रेजेंट हो गए, तभी ये लोग जो है ट्रांसफॉर्म हुए हैं, और तभी ये जो जीन्स है उन्होंने उसका प्रेजेंस दिखाया है अमाइनो एसिड का, क्योंकि ये दोनों जीन्स जो ओरिजिनल डीएनए था उसमें क्लोजली प्रेजेंट है, इसलिए जब फ्रैगमेंटेशन हुआ तो वो दोनों जीन्स ट्रांसफॉर्म हुए, दोनों की दोनों जीन्स अच्छे से सेटल हो पाए, और दोनों की दोनों जीन्स सेटल होने की वजह से, ट्रांसफॉर्म होने की वजह से, वो जो ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया है, जो स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया है, सॉरी बैसिलस जो म्यूटेंट था, वो ओरिजिनल के जैसे ही ट्रिप्टोफैन एंड हिस्टडीन दोनों प्रोड्यूस करने लगा। तो एक्सपेरिमेंट ये किया गया था और इससे पता भी चला क्या कि ये दोनों शायद क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो गए, इसीलिए दोनों ही जीन्स, अगर वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं होते तो दोनों में से एक ही कोई ट्रांसफॉर्म हो पाता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जीन में ट्रिप्टोफैन और जो हिस्टिडीन है उसका जीन बहुत दूर होता है, ठीक है, तो होता क्या, जीन का फ्रैगमेंटेशन के वक्त बस ट्रिप्टोफैन का जीन आता या तो फिर हिस्टिडीन का जीन आता, ठीक है। और बैक्टीरिया जो है, सभी बैक्टीरिया, ऑब्वियसली कुछ बैक्टीरिया ने ट्रिप्टोफैन ही प्रोड्यूस किया होता और कुछ बैक्टीरिया ने हिस्टिडीन ही प्रोड्यूस किया होता, लेकिन हुआ क्या, बैक्टीरिया ने दोनों प्रोड्यूस किए। इसका मतलब क्या कि दोनों जीन्स वेर इन दी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज अ क्लोज को ट्रांसफॉर्मेशन। यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, आपको यहाँ पे भी एग्जांपल बता दी। तो यहाँ पे एक बैक्टीरियल स्ट्रेन है, ठीक है, उसके डीएनए में है 3 जीन्स, ए, बी एंड सी, ठीक है। अब हुआ क्या कि अब ये डोनर सेल है, ठीक है, अब मैंने इसका फ्रैगमेंटेशन कर दिया, ठीक है। तो पहले में क्या आया, पहले में कोई ए नहीं आया, बी नहीं आया, सी नहीं आया, नॉर्मल दूसरा कोई जीन आ गया, ठीक है। दूसरे में क्या आया, ए आया, ठीक है, ठीक। तीसरे में आया ए एंड बी, चौथे में आया सिर्फ बी, पांचवे में आया बी एंड सी, एंड सिक्स्थ इसमें आया बस सी, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद होगा क्या, इसमें जो है बस इसमें कोई जीन ट्रांसफॉर्म नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई जीन था ही नहीं, तो ओरिजिनल जो रेसिपिएंट था उसका कोई सॉरी जो डोनर था उसका कोई जीन इसमें आएगा नहीं, ना ए आएगा, ना बी आएगा, ना सी आएगा, ठीक है। दूसरे में हमने क्या किया, ए को ट्रांसफॉर्म किया था, इसलिए यहाँ पे कौन ट्रांसफॉर्म होगा, को ट्रांसफॉर्म कौन होगा, ए ही होगा, ठीक है। यहाँ पे ए एंड बी, तो इसलिए यहाँ पे ए बी होगा, ठीक है। यहाँ पे बी एंड सी, एंड यहाँ पे कौन होगा, सी। इससे मुझे आपको बताना ये है कि कहीं पे भी आपको ये दिखा क्या कि तीनों जीन ट्रांसफॉर्म हुए हैं, ए बी, बी बी एंड सी बी, क्यों ऐसा, या फिर ए और सी ऐसा हुआ है क्या कहीं पे भी, नो। यहाँ पे आपको कोई जीन नहीं दिखा क्या, यहाँ पे ए दिखेगा, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी और सी, क्योंकि बी सी भी पास में है, ए बी भी पास में है, ठीक है। या तो इंडिविजुअली बी होगा, सी होगा, ए होगा, लेकिन ए और सी होगा क्या, नहीं होगा। या फिर ए बी सी तीनों एक साथ होंगे क्या, नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ये तीनों ए बी पास में है, बी सी पास में, लेकिन
ए और सी बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं है, इसकी वजह से जो है बी और सी जो है कभी भी ए और सी जो है वो कभी भी को ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएंगे। दैट्स वाई इसी फिनोमिनॉन के मदद से हम जीन मैपिंग भी कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, डोनर सेल से डीएनए लेना है, उसका फ्रैगमेंटेशन करना है, उसको डालना है इन द रेसिपिएंट, ठीक है। उसमें जो है वो जीन्स हमें पता है कि हमने कौन से डाले हैं, ठीक है। तो उससे हमें क्या पता चल सकता है, उसका फिनोटाइप कैसा है, या फिर उसने कौन से अमाइनो एसिड प्रोड्यूस किया, या फिर क्या प्रोड्यूस किया, उससे हम इजीली पता कर सकते कि वो कितने फैक्टर्स जो है, कितने जीन्स के कितने फैक्टर्स उस प्रोजेनी में आए, उससे हमें ये पता चल सकता है कि उतने फैक्टर्स के जीन्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हैं, ठीक है। तो यही आप स्टडी कर सकते हैं यूजिंग दी को ट्रांसफॉर्मेशन, दैट्स अबाउट इट। मतलब दो जीन जितने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगे वो उतने ही एक साथ ट्रांसफॉर्म होंगे, ठीक है। अगर वो नहीं होंगे तो वो डिफरेंटली ट्रांसफॉर्म होंगे, या फिर उसमें से एक ही ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट, को ट्रांसफॉर्मेशन यही है। So I hope you understood this lecture, and this co-transformation phenomenon is very important for the gene mapping, ठीक है। So that's about it. If you have any doubt, any query related to this point or this chapter, kindly do contact me. With this point, the whole chapter is concluded, and the transformation procedure, the gene mapping using the transformation, these are the two very important points that you need to remember, okay. If you have any query, any doubt, please ask, and keep watching the lectures. Thank you.